nice words that you spoke about me, and I praise God for this opportunity to look into the Word and sit together and study one more time. And before we go into that, I just wanted to praise God and congratulate Sabir Bhai that God has granted him a baby son. I was a blessing, and he just informed about the situation there as a C-section was going on, decided to be. He asked for prayer, and we have been praying, and that God has given a healthy baby, and both the mother and the baby are doing well, I hope. I want to congratulate and praise God for that. और सबसे पहले मैं भाई रंजित का मैं धन्यवादी हूं, इस तरीके से मुझे स्वागत किया है, और सभी लोगों को संध्याकालीन नमस्कार। उसके साथ साथ भाई शिविर को भी मैं बधाई देता हूं कि प्रभु उनका जीवन में जो है एक आशीष का कारण व एक आशीष करके उनको एक बच्चा दिया है। This evening we are going to आवाज नहीं आ रही है शिविर सर, सर की आवाज नहीं। Uncle, make your voice little bit louder. Can you hear me now? Less. Yeah, little less is coming. Can you hear me now? I can hear you, but others, because I'm putting the earphone, maybe because of that. Okay. No, sir, it is coming clearly. Okay. Okay, sorry for the technical difficulties that I face. I think everything is okay. Everyone can hear me now. Is that okay? Yeah. Okay. We have been looking into the life of Apostle Paul from the book of Acts these days. और इन दिनों में हम जो है प्रेरितों के काम से पौलुस के जीवन के विषय में हम अध्ययन करते हुए आ रहे हैं। This portion that we are going to refer this evening will be Acts of the Apostles, chapter 10 and chapter 11 from 19 to 30. और आज हमारा जो अध्ययन होने वाली है प्रेरित पौलुस का जीवन से, जो प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय और 11वां अध्याय से हम लोग अध्ययन करेंगे। So from this portion we are going to discuss a few things. The theme is how to be usable for God for in our Christian living. और आज का जो विषय का अध्ययन का जो मुख्य जो शिरोनाम ये होने वाली है कि एक मसीही जीवन में हम परमेश्वर के लिए कैसे व्यवहार हो सकते हैं व इस्तेमाल हो सकते हैं। Do you want to be used by God in the mission field? क्या आप जो है जो सेवा है प्रभु का व परमेश्वर का सेवा है, ऐसे सेवा में क्या आप उसके लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं? Then you must know what is required for you to be usable for God. और यदि आप उस सेवा के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं तो आपको जानना जरूरी है कि क्या-क्या जो है आपके जीवन में होना जरूरी है, तब जाकर के आप परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। Saul has now been in his own hometown of Tarsus for 8 or 10 years after fleeing from Jerusalem to escape his Greek-speaking Jews who tried to kill him. और आप देखिए कि जो है तार्शीश को अभी साउल भाग गए हैं, क्योंकि अपना जो यहूदी बोलने वाले जो लोग थे, यहूदी भाषा बोलने वाले लोग जो लोग थे, उनको मारने के लिए बहुत सारे लोग उठे हुए थे, इसीलिए 8 या 9 साल के लिए वो तार्शीश की ओर भाग गए थे। We don't know what he was doing during these years, but certainly he was continuing to grow as God prepared him for a greater ministry in the future. और वो आप जो प्रेरित जो है साउल क्या कर रहे थे, ये बात को हमें नहीं पता, लेकिन हम समझ सकते हैं कि आगे का सेवा के लिए जरूर वो तैयारी कर रहे होंगे। God always work with people whom he want to use in the mission field. और परमेश्वर ऐसे लोगों से जो है काम करते हैं जिनको अपना सेवा व परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। You know, we can see that God was working on Peter, who needed some changes in his
own heart before God could use him in a better and greater way. आप देखिए पतरस का जीवन को देखें। पतरस को इस्तेमाल करने से पहले, अपने परमेश्वर की सेवा में इस्तेमाल करने से पहले, उसके दिल में परमेश्वर जो है बहुत सारा परिवर्तन को ला रहे थे। It could be your experience and my experience that God is always working on you and me so that we will be more usable for him. और ये आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूं। परमेश्वर जो है अपना सेवा में इस्तेमाल करने के लिए आपके और मेरे जीवन में जो है कार्य करते हैं, ताकि बहुतायत रीति से आप और मैं इस्तेमाल हो सकते हैं। Last week we studied about the 3 requirements for getting God to bless our church gatherings. और पिछले सप्ताह हम लोगों ने इस बात के ऊपर चर्चा की है, 3 बातों के ऊपर जो है हमारा कलीसिया के ऊपर परमेश्वर की आशीष होना है, तो फिर हमें किस तरीके से हमारा जीवन को जीना है। Let me now remind you these 3 things we discussed last week. और पिछले जो सप्ताह थी, उस सप्ताह में हम लोगों ने 3 मुख्य विषय के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। आज मैं आपको फिर से स्मरण दिलाना चाहता हूं। Number 1, don't be judgmental. और सबसे पहली बात है कि दूसरों को देखते ही आप दोष लगाने वाले ना बने। Number 2, make people feel accepted and be comfortable in our gatherings. और दूसरी बात को हम लोगों ने चर्चा किया था, वो ये है कि लोग जब आपको देखते हैं तो फिर उन लोगों को ऐसा महसूस हो, वे लोग ऐसे अनुभव करें कि आपके जो झुंड में, आपके जो ग्रुप में वे लोग स्वागत किए जा रहे हैं। Number 3 is try to win non-believers. Our aim and motivation is always for the unsaved people to be saved by the gospel. और हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य, सबसे बड़ा लक्ष्य यही होना चाहिए कि जो अविश्वासी लोग हैं वे उद्धार के अनुभव में आए। We discussed about 2 important persons in the Bible, Ananias and Barnabas, were the 2 examples found in the book of Acts. और हम लोगों ने 2 ऐसे उदाहरण को देखे थे कि बरनबास और अननियास, वे दोनों प्रोत्साहन देने वाले लोग थे। They were really standing as an encouragement for the newcomers of the church gathering and fellowship of the believers around us. और जैसे कि वे दोनों बहुत प्रोत्साहित देने वाले लोग थे, नए सिरे से जो विश्वास में आते, कलीसिया में आते थे, उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहन देते थे। So those were the 3 important factors that we discussed last class. And now in this evening, this passage that I mentioned, we discover 4 requirements for being usable for God. और जो है हम लोग देख सकते हैं कि आज हम लोग जो है 4 ऐसी मुख्य बातों को हम लोग जो है आज चर्चा करेंगे, ताकि आप और मैं परमेश्वर की उस सेवा में इस्तेमाल हो पाएं। Let me tell those 4 things initially. Number 1, treat all believers equally or equitably without any favoritism. Number 2, decide in advance to live faithfully. And number 3, use our gifts collectively. And number 4, give generously and cheerfully. I will come back to that again. Number 1 is treat all believers equally. और आज हम लोगों ने जो 4 बातों को देखने वाले हैं वो ये है कि जो है सभी लोगों को बराबर तरीके से आपको ध्यान देना है। सभी लोगों को बराबर तरीके से ध्यान देना बहुत जरूरी है। There should not be any favoritism to anyone in the assembly gatherings, but because it is purchased by God and God paid the same price for each and every one of his children, and we should not have any favoritism to anyone. और जैसे कि जो है कलीसिया में जो सदस्य हैं, सभी लोगों को परमेश्वर अपना बहुमूल्य लहू से जो है उन्होंने मोल दिया है, इसीलिए कलीसिया में कभी भी पक्षपात होना नहीं चाहिए। Now, if you read carefully the chapter 10, you will understand that this is important. और यदि आप 10वां अध्याय को जो है आप अध्ययन करेंगे, तो ये विषय को आप विस्तार रीति से कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को आप समझ सकते हैं।
Number 2 is decide in advance to live faithfully before God. और दूसरी बात यह है कि जो है सबसे पहले आप ये तय करिए, निर्णय लीजिए कि आप परमेश्वर के लिए एक विश्वस्त जीवन को जिएंगे। Acts 11:19 to 24, that verses you can notice there. और आप प्रेरितों के काम उसका जो है 11वां अध्याय 19 से लेकर के जो है 23वां पद तक आप पढ़ेंगे तो इस बात को आप देख सकते हैं। Number 3, use our gifts collectively. और तीसरा जो विषय आज हमारा अध्ययन होने वाली है वो ये है कि जो परमेश्वर ने वरदान दिया है उस वरदान को हम सब के सब मिल करके परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें। Chapter 11 verses 25, 26 and 27 refers that particular aspect. और इस बात को यदि हमें समझना है तो 11 अध्याय उसका जो है 25वां आयत से लेकर के 27वां आयत तक हम इस बात को पढ़ सकते हैं। And fourthly, give generously and cheerfully. और चौथी बात को आज हमारा अध्ययन होने वाली है कि जो कुछ भी दे आप बड़े उदारता के साथ दूसरों को दें। Chapter 11 verses 28 to 30, you can read that. और इस बात को समझना है तो आप प्रेरितों के काम उसका 11वां अध्याय 28 पद से लेकर के 30वां पद तक आप पढ़ सकते हैं। Now we are going to one by one, very briefly, for our understanding. Pardon me, uncle. There was a call that's I could not hear. We are just going one by one, very briefly, for our understanding. और आइए हम लोग एक के बाद एक जो विषय है उस विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। Number 1 is treat all believers equitably or without any favoritism as equal. पहली बात यही है कि सभी लोगों को बराबर तरीके से व्यवहार कीजिए, किसी के साथ भी आप पक्षपात मत कीजिए। There should be a balance in treating all believers on the same manner and same measure. और जैसे कि सभी विश्वासियों को समांतर तरीके से आप जैसे कि तोल तलते हैं उसी तरीके से जो है आपको सभी लोगों को बराबर तरीके से कलीसिया में व्यवहार करना है, पक्षपात नहीं करना चाहिए। This means we must treat everyone fairly and not by prejudice or showing any favoritism. और जो उसका अर्थ यही है कि हमारे जो पूर्व सोच और विचार है, धनी है या अमीर है, ऐसा सोच और विचार रख करके हमें किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करना चाहिए, व्यवहार नहीं करना चाहिए। Now, if you look carefully, the early church, including Peter, was guilty of prejudice toward non-Jews, but in chapter 10, God changes everything. और अब देखिए पतरस का जीवन में देखिए 10वां अध्याय से पहले पतरस का जीवन में भी यही था और फिर बाद में हम लोग देखते हैं कि वो पक्षपात कर रहे थे, जो अन्य यहूदी थे उन लोगों को देख करके वो पक्षपात कर रहे थे। लेकिन 10वां अध्याय के बाद पतरस का जीवन में बहुत बड़ा एक बेदारी परिवर्तन आता है। So if you carefully read chapter 10, we can see that there we read about Cornelius, who resides in Caesarea and is a Roman centurion of the Italian regiment. और हम लोग यदि 10वां अध्याय को अध्ययन करें तो फिर एक ऐसे व्यक्ति के विषय में हम लोग देखते हैं, वो है कॉर्नेलियस। वो जो है कैसरिया में थे और वो एक सेनापति थे, बस सूबेदार थे। Yeah, he was a centurion. He is in command of 100 Roman soldiers under him. और हम लोग देखते हैं सेनापति उसका मतलब यह है कि सूबेदार का मतलब यह है रोमी लोगों का जो सेना में से उनके जो नीचे 100 सेना व 100 सैन्य वे लोग काम करते हैं। What do we read about Cornelius in chapter 10 verse 2? I just wanted to mention a couple of things about him. और जो है 10वां अध्याय का उसका दूसरा पद में कॉर्नेलियस के विषय में हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, उनके विषय में मैं कुछ ऐसी बातों को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। We read Cornelius is a man, a devout man, and one who feared God with all his household, who gave alms generously to the people and prayed to God always.
और दूसरा पद को यदि हम लोग पढ़ें तो वो एक भक्त थे, और उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि पूरा के पूरा परिवार परमेश्वर का भय मानने वाले लोग थे। जो तीसरा विषय यदि उनका जीवन में देखें तो जो है वे लोग परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के लिए दान देने वाले और उसके साथ साथ प्रार्थनाशील लोग थे। Cornelius, a general, had a vision in which an angel appeared to him. He was a Gentile person, not from for a born again, but he was a Gentile. He had a vision which an angel appeared to him and told him to send people for Peter to come to his house. और अब देखिए कॉर्नेलियस कौन है, ना एक अन्य जाति के व्यक्ति थे, अन यहूदी थे। और हम लोग यदि देखें तो फिर जो है स्वर्गदूत को अपने दर्शन में वो देखते हैं और फिर कुछ लोगों को पतरस को बुला करके ले आने के लिए वो जो है संदेश वाहक भेजते हैं। He was such a nice person, here we see that he was a devotee of a very devoted person. और वो एक बहुत ही सुंदर किस्म के व्यक्ति थे क्योंकि वो परमेश्वर का एक भय व भक्ति करने वाले व्यक्ति थे। Not only that, with his whole family, he was fearing God. और आप देखिए उतना ही नहीं बल्कि पूरा परिवार के साथ वे परमेश्वर का भय मानने वाले लोग थे। He gave alms generously to the poor people. और जो है गरीबों को बड़े उदारता के दिल के साथ वो दूसरों को देते थे। All this, and not only that, he prayed to God always. और उतना ही नहीं बल्कि हर समय परमेश्वर के पास रहते हुए उन्होंने प्रार्थना करते थे। He was very devotee, and he feared God with all his household, and he was giving to the poor, and he was always praying. What else we need? और अब देखिए कि जो है वो व्यक्ति भय मानने वाले थे, दूसरा हम लोग देखते हैं कि वो भक्ति करने वाले थे, दूसरों को दान देते थे, उसके साथ साथ वो प्रार्थना करते थे। एक व्यक्ति का जीवन में इतना कुछ है और क्या चाहिए। So his prayers and his generosity and everything reached God, and God was so much pleased. But the only thing we need to understand is that all these things were going on in his life, all good things, but he never knew the Lord as his personal savior. ओ, ये सब कुछ बातें जो है उसके जीवन में हो रहा तो है, बहुत अच्छी बात है, भलाई की काम उसका जीवन में हो रहा है, लेकिन व्यक्तिगत रूप में प्रभु व परमेश्वर को उसने अनुभव नहीं किया है। We can see so many good people like this, just like Cornelius, around us. Even in the churches also, we can see people like that. और जैसे कि हम लोग हमारे चारों ओर, हमारे पड़ोसी, हमारे कलीसियाओं में हम लोग ऐसे लोगों को हम देख सकते हैं। So in his vision, God was pleased to send Peter to Cornelius to share the gospel, because his prayers are before God, his generosity, giving is there, his fear of God with his family is before God, and everything is, God is pleased with him, but he wants Cornelius also to be in God's presence. That's why he sent Peter to share the gospel to Cornelius. और अब देखिए उस दर्शन में जो है प्रभु बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है। क्या है कि वो व्यक्ति तो जो है प्रार्थनाशील व्यक्ति है, परमेश्वर का भय मानते थे, भक्ति भरा व्यक्ति, दूसरों को दान देते थे, ये सब कुछ अच्छी बात है। लेकिन उस दर्शन में जो है परमेश्वर क्या करते हैं ना, पतरस को भेजते हैं। क्यों? क्योंकि कॉर्नेलियस को भी जो है परमेश्वर अपना उपस्थिति में मिलना चाहते हैं। Brothers and sisters, we can see so many people, not only Christians, there are good people who fear God, who help the poor, and is always praying and doing good things to others, but they never heard the gospel. That's why you and I are in the mission field to share the gospel, sometimes without any prejudice or any preoccupied mentality. We should reach them and share the gospel, because God knows them, God is pleased in their life, but God wants them to be saved by sharing the gospel.
और आप देखिए प्यारो, आपको और मुझे भी जो है सुसमाचार सुनाने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जो है जो अविश्वासी हैं उन लोगों से परमेश्वर प्रेम करते हैं। परमेश्वर यही चाहते हैं कि वे लोग भी जो है परमेश्वर की उपस्थिति में आए, उद्धार का अनुभव में आए। इसीलिए आपको और मुझे उस संदेश को सुनाते जाना है। Cornelius, a Gentile, had a vision in which an angel appeared to him and told him that he had found favor with God because of his generosity and prayers. और अब देखिए पर जो है कॉर्नेलियस क्या करते हैं ना, कॉर्नेलियस एक दर्शन को देखते हैं। उस दर्शन में जो है स्वर्गदूत आ करके उनसे कहते हैं, आपकी प्रार्थना, आप जो है दूसरों को दान देते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, इसीलिए परमेश्वर के सामने आपको अनुग्रह मिला है। आप जो है परमेश्वर के सामने आप परमेश्वर को ध्यान देते हैं। इस बात जो है हम लोग देख सकते हैं। The angel told him to send men to the house of Simon Peter, the tanner in Joppa, and request Simon Peter to come. और अब देखिए कॉर्नेलियस क्या करते हैं ना, वहां से जो है संदेशवाहक भेज करके, दूतों को भेज करके जो है जोपा में भेजाते हैं ताकि वे लोग पतरस को बुला करके ले आएं। Meanwhile, Peter was having a vision in which God reveals him to him should not look upon Gentiles, as unclean, but wants to redeem through the blood of Jesus Christ. Peter was a Jewish background, and then Cornelius was a Gentile. So Peter was not very happy to go and minister to him. आप देखिए इस घटना के दरमियान हम देखते हैं कि पतरस भी जो है एक दर्शन को देखते हैं। वो दर्शन के समय में क्या है ना, कॉर्नेलियस एक अन्य जाति थे और पतरस एक यहूदी थे, इसीलिए ऐसे अन्य जाति के पास जाना उनको अच्छा नहीं लग रहा था। But God was preparing Peter to send him to Cornelius and to share the gospel. लेकिन परमेश्वर पतरस को तैयार कर रहे थे ताकि पतरस जा करके कॉर्नेलियस के पास पहुंच करके वो सुसमाचार को सुनाए। As Peter wakes up from his vision, messengers arrive and invite him to visit Cornelius. और अब देखिए जैसे ही दर्शन देखना खत्म हो जाता है, वैसे ही जो है कॉर्नेलियस का दूत पहुंचते हैं और वे लोग उनको स्वागत करके कॉर्नेलियस के पास जो है वे लोग ले जाते हैं। The next day, Peter travels to Caesarea to see Cornelius. और उसका दूसरा दिन जो है पतरस कैसरिया की ओर यात्रा करते हैं ताकि वो कॉर्नेलियस को वो मिल पाए। So if you look at chapter 10, verse 34 and 35, Peter preaching to Cornelius' household, then Peter opened his mouth and said, in truth, I perceive that God shows no partiality, but in every nation, whoever fears him and works righteousness is accepted by him. आप Verse 34 and देखिए 35. और जो है आप देखिए 34 और 35वां पद में पतरस किस बात को और किस तरीके से कहते हैं। तब पतरस ने मुंह खोल करके कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म का काम करता है वो उसे भाता है। See, as a result of the preaching of Peter, Cornelius and the Gentiles of his family are saved and receive the Holy Spirit. और अब देखिए वे भले ही जो है अन्य जाति हैं, लेकिन हम देखते हैं पतरस का उस प्रचार की वजह से वे उद्धार पा करके जो है पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हुए पवित्र आत्मा उनके ऊपर आता है। If you look at verse 45 to 48, Peter orders that they be baptized. और आप देखिए 45वां पद से लेकर के 48वां पद को आप लोग देखें तो पतरस जो है इस आज्ञा को देते हैं ताकि वे भी बपतिस्मा लें। See, like Peter, each of us must deal with our prejudice. Sometimes, we should have that prejudice in our mind. We have to overcome prejudice. Prejudice is a preoccupied opinion about other people. और जैसे कि हम लोग देखते हैं जो है
पूर्व से व पहले से ही हमारा सोच और विचार दूसरों के प्रति कैसा होता है, वैसा मन में जो है भरा हुआ रहता है। जो है पतरस का जीवन में वही चीज को हम लोग देख सकते हैं। We may have prejudice in many areas of our lives beside their race or their family background. और हमारे मन में भी जो है पूर्व आशंका जो है होती है, पूर्व से पहले से ही जो है संकट होती है लोगों के विषय में। In our culture, there are economic prejudice, there are educational prejudice, there's a denominational prejudice, and so on. And we have different kinds of preoccupied mentality about other people. और जो है दूसरे लोगों के विषय में आपके और मेरे मन में भी जो है धन को लेकर के या फिर लोगों के विषय में लेकर के जो है पहले से ही शंका भरा हुआ रहता है। We have a tendency to look down on people who are different from us, even if they are Christians. और जो है भले ही वे लोग मसीही हैं, लेकिन दूसरों के विषय में आप और मैं जो है गलत धारणा करके जो है पक्षपात का सोच हमारे मन में होते हैं, पूर्व धारणा होती है। That is not a good thing at all. और ऐसा सोच और विचार रखना अच्छी बात नहीं है। That's why God gives us a command in James chapter 2 verse 1. He says, "My brethren, do not hold of faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with partiality. Beware of personal favoritism." और आप देखिए कि जो है इसीलिए परमेश्वर आज्ञा देते हैं, याकूब का पत्री उसका 2 अध्याय 4 पद में हम लोग देखते हैं कि तो क्या तुम आपस में भेदभाव ना किया और कुविचार से न्याय करने वाले ना ठहरे। हे मेरे प्यारे भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना और विश्वास में धनी और राज्य के अधिकारी और प्रतिज्ञा से उनकी जो उससे प्रसन्न रखते हैं। God has made all who are in Christ clean by the blood of Jesus Christ, and all are to be treated the same way. और परमेश्वर ने अपना पवित्र लहू से सभी लोगों को मोल लिया है, इसीलिए हमें किसी का भी पक्षपात ना करके सभी लोगों को बराबर तरीके से ध्यान देना जरूरी है। This means that we should always act like saints, not snobs. Snobs means a person with exaggerated respect or a person who believes who is superior to other people. We should not have that kind of mentality in our Christian life. और हमारे मसीह जीवन में जो है कभी भी हमें ऐसा सोच और विचार नहीं रखना चाहिए, पक्षपात की स्वभाव जो है हमारे जीवन में नहीं होना। और जो है क्या है कि दूसरों को ये लोग मेरे से छोटे हैं, मैं सबसे बड़ा हूं, ये सोच और विचार जो है हमें नहीं रखना चाहिए। Beloved, to be usable by God, we must treat all believers equally without any personal favoritism or prejudice of any kind. और अब देखिए प्यारे, परमेश्वर की सेवा के लिए आप यदि इस्तेमाल होना चाहते हैं तो जो है पहले से ही पूर्व शंका रख करके, पूर्व धारणा रख करके किसी के साथ भी जो है हमें पक्षपात का व्यवहार नहीं करना चाहिए। Now we come to the second thing. In order to be usable by God, decide in advance to live faithfully. और जो है दूसरी बात को अभी हम लोग देखने वाले हैं, वो विषय ये है कि सबसे पहले आप तय कीजिए, निर्णय लीजिए कि आपका जीवन आपका विश्वास तरीके से परमेश्वर के लिए जिएंगे। You should refer to Acts 11:19-24. Those verses, you can read that there. और यदि आप 11 अध्याय 19वां पद से लेकर के आप यदि 23वां पद तक आप लोग देखना चाहते हैं तो उस विषय को आप वहां पर देख सकते हैं। You remember, because of persecution, believers were scattered hundreds of miles from Jerusalem.
सत्तावटी के कारण जो है आप इस बात को तो स्मरण रख सकते हैं कि यरूशलेम को छोड़ करके बहुत सारे जो विश्वासी लोग तितर बितर हो गए थे। Now, the word translated scattered means to distribute or to sow, sowing a seed, we are sowing seeds, just like distribute and sow. That means God used the persecution of the churches to scatter his seeds all over the world so he could reap great harvest. और अब देखिए यहाँ पर जो है तितर बितर होना एक शब्द को जो है इस्तेमाल की गई है, वो है स्काटर। स्काटर का मतलब यही होता है कि जैसे कि एक बीज बोने वाला व्यक्ति बीज को बो देता है, उसका मतलब यही है कि जो कलीसिया के लोग तितर बितर हो गए, चारों ओर फैल गए, ताकि परमेश्वर जो बिखरे हुए बीजों का फल को वो काट सके, सारा पृथ्वी का फल को वो काट सके। So when persecution comes, don't take it as a negative thing. God always want to go through certain difficult situations, because as we read in Romans 8:28, we see that it reveals Satan can't do anything to us that God can't turn into good thing. और अब देखिए कि जो है हम लोग इस बात को समझते हैं, आप ऐसे परिस्थिति का सामना आप जब करते हैं, शैतान हर तरीके से प्रयास करता है ताकि आप जो है परमेश्वर से दूर हो सके, लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है रोमियो 8:28 में सब कुछ हमारे भलाई के लिए होता है। If the evil one has been the instigator of hardship or disappointment in your life and my life, God can use it for good. और अब देखिए दुष्ट लोग जो है आपके और मेरे जीवन में कार्य करते हैं, जो है बहुत बड़ा परेशानियों को आपके और मेरे जीवन में ले आना चाहते हैं, लेकिन वही बुराई को और वही गलत चीज को परमेश्वर भलाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। One of the cities to which all these scattered believers went was in Antioch in Syria, about 300 miles north of Jerusalem. और जैसे कि हम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि जो है अंत्योकिया नामक जगह तक वे लोग चले गए, उसका मतलब ये है कि यरूशलेम से करीबन जो है 300 मील दूर ये जगह उसकी अस्तित्व है, उस जगह स्थापित है। Many people there became believers and turned to the Lord. और बहुत सारे ऐसे जो लोग थे वे लोग विश्वासी हुए और प्रभु के पास आए। A large church is formed there. बहुत बड़ी कलीसिया की स्थापना हुई। No, notice they not only believe but also turn to the Lord. Not only believing but turning to God, turning to the Lord. और आप देखिए कि जो है वे विश्वास किए ही नहीं, बल्कि वे सब के सब जो है परमेश्वर की ओर फिरे। It is not just enough to believe in Jesus Christ. We need to take a 180-degree turn around, and then you turn to the Lord. Not only just believe and live your own lifestyle, but you have to make a turn, a U-turn, and come back to the right direction towards the Lord Jesus. आपको विश्वास ही करना उतना काफी नहीं है। 180 डिग्री जो है आपको मोड़ करके आप जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ता को छोड़ करके प्रभु के रास्ते के और जो है 180 डिग्री का जो है मन फिरा जो है पीछे मोड़ करके आपको प्रभु के रास्ते पे चलना है। Faith in the Lord needs to follow the actions also. और जो है प्रभु के पास जो विश्वास है वो विश्वास प्रभु में कर्म करके भी दिखाना जरूरी है। Faith without actions is not faith at all. और जो है विश्वास कर्म बिना अधूरा है। Many people turned to God in Antioch. बहुत सारे लोग जो है अंत्योकिया में परमेश्वर की ओर फिरे व प्रभु के ओर फिरे। See the blessing when believers turned to the Lord in Antioch. The church in Jerusalem sent Barnabas to investigate on what happened there. और अब देखिए कितनी बड़ी बात में कितनी बड़ी घटना हो रही है। बहुत सारे लोग प्रभु के और जितने लोग फिरे, कलीसिया स्थापना हुई, तो यरूशलेम से बरनबास को जो है वहां पर भेजा जाता है कि वहां पर वास्तव में क्या हो रहा है, इसका अनुसंधान करने के लिए बरनबास को भेजा गया।
Why did they send Barnabas? Because he was a good man who wants, who wants to be without any prejudice. He was not prejudiced, but was ready to accept and true believers, as he did to Saul. और हम लोग इस बात को देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा विश्वासी है जो है पूर्व धारणा उनके मन में कुछ भी नहीं है। जो लोग जो है सबसे पहले विश्वास में आते हैं उन्हीं को ही वो प्रोत्साहन देते हैं, जैसे कि उन्होंने साउल को दिया था, पाउल को दिया था। When Barnabas arrives and sees the evidence of the grace of God, he is glad and encouraged them. और अब देखिए, जैसे ही बरनबास अंतियोकिया में आते हैं, सभी लोगों को देखते हुए, परमेश्वर का अनुग्रह को देखते हुए वे क्या करते हैं न सभी लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। See, Barnabas' gift was encouragement, and that was exactly what these believers needed to feel welcome in the body of Christ. और अब देखिए, जो बरनबास का वरदान क्या था, दूसरों को प्रोत्साहन देने की वरदान, और ये जो विश्वासी लोग थे, यही प्रोत्साहन की, कलीसिया में प्रोत्साहन की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। In other words, Barnabas encourages them to plan in advance to remain faithful to the Lord with all their hearts. और उसका दूसरे शब्द में कहा जाए तो बरनबास सबसे पहले योजना बना लेते हैं ताकि ये जो विश्वासी लोग हैं अपना जीवन भर परमेश्वर की सेवा के लिए विश्वस्त रहे। This is something we all need to understand and teach our children also. We don't resist temptation accidentally or casually. और अब देखिए, यही बात को ही हमें जो है हमारे विश्वासी और उसके साथ साथ हमारे बच्चों को भी शिक्षा देना जरूरी है कि जो है ऐसे ही प्रलोभन और परीक्षाएं आती है उसको हमें प्रतिरोध करना जरूरी है। We should teach them that we must make a deliberate decision in advance to remain true to the Lord. और इस बात को हमें शिक्षा देना जरूरी है कि जब परीक्षाएं और प्रलोभन आती है तो हमें सबसे पहले यही तय करना है, निर्णय करके रखना है कि नहीं, ऐसे पाप में मैं नहीं गिरना चाहता, ऐसे परीक्षाओं में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं करके सबसे पहले तय करके रखना जरूरी है। You know, the time to decide whether or not you are going to remain true to the Lord is not in the tempest of temptation or in the depth of despair or in the pinnacle of pain. और अब देखो, उसको आप जो है कब आप प्रतिरोध करेंगे? नहीं, जब हमारे जीवन में प्रलोभन परीक्षाएं आती है उस वक्त करेंगे, या फिर कष्ट और संकट परेशानियां आती है ऐसे वक्त में करेंगे, या फिर जब निराशा हो जाते हैं तभी आप प्रतिरोध करेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। We must decide in advance to remain faithful to God, whatever the circumstances may be, whether it is persecution, it's hardship, without poverty, whatever, sickness or whatever it may be. और सबसे पहले ही हमें तय करके रखना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, मैं जो है परमेश्वर के लिए विश्वस्त होकर के मेरा जीवन को मैं व्यतीत करूंगा, भले कष्ट आए, परेशानी आए, मुश्किल आए या फिर सतावट आए, मैं परमेश्वर के लिए विश्वस्त ठहरूंगा। आपको तय करके रखना है। To be usable for God, we must treat all believers equally and decide in advance in our life that we live a faithful life before God and God's people. परमेश्वर की सेवा के लिए आप हैं तो जो है आपको सबसे पहले तय करना है कि आप जो है अपना जीवन को विश्वस्त तरीके से जो है आप जिएंगे। Now we will come to the third point. अभी हम लोग तीसरे विषय की ओर आते हैं। Chapter 11, verse 25, 26 and 27, we see Barnabas was a great encourager, but he knew the believers also needed teaching. और अब देखिए 25वां पद से लेकर के 28वां पद यदि देखेंगे तो हम जानते हैं कि बरनबा एक प्रोत्साहन देने वाला व्यक्ति है, लेकिन इस बात को भी हम लोग समझते हैं वहां के विश्वासी प्रोत्साहन ही नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन का शिक्षा भी उनको जरूरी है। Barnabas was a great encourager, but he's looking for some Bible teachers also.
और हम जानते हैं कि बरनबा जो है एक प्रोत्साहन देने वाला व्यक्ति है, लेकिन बरनबा ऐसे व्यक्ति का तलाश में थे ताकि एक परमेश्वर का वचन का शिक्षा देने वाला व्यक्ति हो कोई। Therefore, Barnabas goes to Tarsus to get Saul from there to teach the word of God. और इसीलिए बरनबा क्या करते हैं, तार्शीश की ओर जाते हैं, वहां से साउल को वो ढूंढने के लिए वो चले जाते हैं ताकि वो आकर परमेश्वर का वचन को शिक्षा दे। So he brings him to Antioch, and for a year they teach large number of people in there. और वो क्या करते हैं, तार्शीश से साउल को अंतियोकिया में लेकर के आते हैं ताकि वे लोग बहुत बड़ा एक भीड़ को 1 साल तक परमेश्वर का वचन को शिक्षा देते हैं। This is a great teamwork. See, in our assemblies, in our gospel ministry, we do sometimes in North India or in Kerala or in America and wherever, in Africa, wherever you go, there should be a teamwork. Barnabas with gift of encouragement and Saul with the gift of teaching. और जो है ऐसे ही हमारे जीवन में भी होना चाहिए। हम जो है टीम के तरह जो है सेवा करना जरूरी है। भले आप नॉर्थ इंडिया में सेवा कर रहे हैं, केरल में कर रहे हैं, अफ्रीका में कर रहे हैं, कहीं पर भी जो है प्रभु का आप सेवा करते हैं, तो हम भाई और बहनों के लिए सभी लोगों को जो है एक टीम के रूप में सेवा करना जरूरी है। जैसे कि हम लोग देखते हैं, बरनबा एक प्रश्न देने वाला व्यक्ति है, साउल परमेश्वर का वचन का शिक्षा देने वाला एक व्यक्ति है। Two things I learned from this is, number one, we should be always an encourager, to give encouragement to other people, the new people. And the other thing I learned is that we should always will be teaching the word or rightly dividing the word to the people. Teach them the right thing at the right time. और जो है 2 बातों को मैंने जो है इन लोगों से सीखा, वो ये है, किसी भी वक्त में, किसी भी परिस्थिति में दूसरों को हमें प्रोत्साहन देना जरूरी है। उसके साथ साथ जो है परमेश्वर का वचन को किसी भी वक्त कोई भी बोले, ऐसे वक्त में परमेश्वर का वचन का शिक्षा देना भी जरूरी है। If you want to be successful in your mission work in the North India or wherever you are placed, you need to be always an encourager, giving encouragement to people so that they will be attracted to the gospel and to the life of Jesus Christ. And also, you should be teaching them properly the right word at the right time. और मेरे प्यारो, आपको और मुझे क्या करना है, परमेश्वर का सेवा के लिए आप इस्तेमाल होना चाहते हैं, व्यवहार होना चाहते हैं, तो हमें दूसरों को प्रोत्साहन देना जरूरी है ताकि वे क्या करें, न सुसमाचार के सेवा के प्रति आकर्षित हो, प्रभु यीशु मसीह के सेवा, प्रभु यीशु मसीह के जीवन के प्रति वे आकर्षित हो। उसी तरीके से हमें जो है एक अच्छी मार्गदर्शन देने वाला, प्रोत्साहन देने वाला बनना जरूरी है। We all need both a personal encourager and also a Bible teacher, but very rarely do we find both gifts in the same person. और जो है हमें इन दोनों का बहुत जरूरी है और जरूरत भी है, वो ये है कि प्रोत्साहन देने वाले लोगों का, उसके साथ साथ प्रभु का वचन को शिक्षा देने वाले लोगों का। लेकिन ये दोनों वरदान एक व्यक्ति के जीवन में हम बहुत ही कम पाते हैं। That's why we need a church of people, believers with different gifts given to them by teaching, encouraging, and to having fellowship and to spend time with other people. Now, this kind of different believers in the assembly is a blessing for teaching and encouraging and continue the mission work in the field. और इसीलिए कलीसिया में हमें बहुत सारे लोगों का आवश्यकता है। बहुत सारे लोग जब होते हैं तो अन्य अलग अलग वरदानों से वे लोग भरे हुए रहते हैं, जैसे कि प्रोत्साहन देना, शिक्षा देना, संगति रखना, दूसरों को दान देना। इस तरीके से जो है हम संगति रखते हुए एक दूसरे को प्रोत्साहित करके कलीसिया को आगे बढ़ा सकते हैं। We need the fellowship of believers who have different gifts. और जो है हमें ऐसे विश्वासियों का आवश्यकता है जिनके पास बहुत सारे वरदानों का भंडार है, और ऐसे लोगों का संगति हमें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। Now the disciples were first called Christians in Antioch. We read in verse 26.
और 26वां पद में इस बात को देखते हैं, वहां के जो चेले थे वे लोग सबसे पहली बार जो है वे लोग मसीही कहलाए हैं अथवा क्रिश्चियन कहलाए थे। This is the first time we find this word in the Bible. और परमेश्वर का वचन जो बाइबल है, ये मसीह का शब्द हम लोग पहली बार यहाँ पर पाते हैं। Up to this point, the followers of Jesus were called disciples, believers, followers of the way, or saints, or different things they call. But the word translated Christians or Christianos means followers of Christ. So this is the first time that name is used in the Bible, in the book of Acts. और यहाँ पर जो है लोगों को मसीह कहलाए बा क्रिश्चियन कहलाए, उससे पहले जो लोग प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करते थे उन लोगों को जो है यीशु मसीह का चेले, अनुकरण करने वाले, विश्वासी, इस तरीके से वे लोग जाने जाते थे। लेकिन पहली बार यहाँ जो प्रभु यीशु मसीह को अनुकरण कर रहे थे उन लोगों को क्रिश्चियन कहा गया व मसीह कहा गया। जो क्रिश्चियन का मतलब यही है कि जो लोग यीशु मसीह का अनुकरण करते हैं। How do we know that we are following Christ? हम लोग कैसे जानते हैं कि आप और मैं मसीहा का अनुकरण कर रहे हैं? Now, if you look at Matthew chapter 4, verse 19, then the Lord Jesus says there, he said to them, "Follow me, and I will make you fishers of men." और यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय और 19वां आयत को आप लोग पढ़ें तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह चेले से कहते हैं, तुम मेरे पास आओ व मेरे पीछे पीछे चलो ताकि तुम्हें मैं मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा व सिखाऊंगा। Verse 20 immediately say, they immediately left their nets and followed him. और जो है 20वां पद में हम लोग देखते हैं वे तुरंत जो है अपने जालों को छोड़ करके यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं। If we are not fishing for men and women, we are not following Christ. और यदि आप और मैं लोगों को स्त्री और पुरुष का जो है नहीं पकड़ रहे हैं, उसका मतलब ये है कि आप यीशु मसीह का अनुकरण नहीं कर रहे हैं। Over the centuries, the word Christian has lost much of its biblical meaning. और जो है हमें जो पिछले बहुत सारे शताब्दी को यदि देखें, बहुत सारे जो सालों में हम लोग देखें तो ये जो मसीही जो शब्द का जो अर्थ है वो शब्द का अर्थ को विश्वासी लोग खो चुके हैं। Many people call themselves as Christians because they do not want to be considered as pagans. और बहुत सारे लोग अपने आप को मसीह कहलाए हैं, क्रिश्चियंस कहलाए, क्योंकि वे लोग अन्य जाति के नाम से वे लोग नहीं जाना चाहते थे। Some people today are called evangelical Christians as though they are different kinds of Christians. और जो है आज कुछ लोग ऐसे अपने आप को जो है इवांजेलिकल क्रिश्चियंस करके बुलाना चाहते हैं। उसका मतलब यही है कि वे अपने आप में यही सोचते हैं कि वे लोग कुछ अलग किस्म के मसीह लोग हैं। The word evangelical refers to those who believes in the salvation by grace through faith and promote evangelism. और इवांजेलिकल का मतलब यही है कि वो लोग यही इसी को विश्वास करते हैं कि अनुग्रह के द्वारा ही उद्धार होती है और जो उद्धार का अनुभव में आने के बाद सभी लोगों को वे लोग भी सुसमाचार को सुनाते जाते हैं। We cannot be Christians or followers of Jesus unless we are fishers of men or evangelicals. और आप और मैं जो है सच्चे मसीही, सच्चे क्रिश्चियन जब तक नहीं कहलाएंगे तब तक कि हम जो है लोगों को पकड़ते नहीं हैं, व स्त्री या पुरुष को जो है मसीह में नहीं लाते, तब तक हम सच्चे मसीह नहीं कहलाएंगे। Look at Matthew chapter 28 verse 19. Jesus is commanding here, go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. और आप देखिए प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और जो है 20वां पद में हम लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या क्या कहते हुए हम लोग देखते हैं। 19 और 20वां पद में तुम जो है सारा संसार में जा करके चेले बनाओ, चेले बनाने के बाद जो है पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। That is our commission on this earth.
That is our और commission on this earth. वही जो है इस संसार में, और हमारे जो जीवन इस संसार में व्यतीत करते हैं वही हमारे लिए आज्ञा परमेश्वर ने दे करके रखा है। Listen, because of the collective exercise of the spiritual gifts, the church in Antioch continues to grow day by day. और हम लोग देखिए यहाँ पर सभी विश्वासियों का सहमत और उसके साथ साथ एकत्रित होकर के प्रभु का वचन को सीखने के लिए मन बनाए हैं, इसीलिए वहां की कलीसिया दिन ब दिन बढ़ता चला गया। See, the word of God is the spokesperson. और देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन ही जो है एक जो है बोलने वाला है, मुखा जो है स्पोक्स पर्सन मतलब जो है बोलने वाला व्यक्ति है। In the Bible, it is one who speaks is the word of God. और बाइबल में जो बातें बताती है वो है परमेश्वर का वचन। The Bible, the Old Testament and the New Testament contains everything we need to know as Christians. और जो है परमेश्वर का वचन में यदि हम लोग देखें बाइबल में जो कुछ भी हमें चाहिए वो सब कुछ जो है परमेश्वर का वचन में बताया गया है। So we don't need any other book or any other new gospel. और इसीलिए हमें जो है और कोई दूसरा जो है पुस्तक जो है और कोई सुसमाचार हमें नहीं चाहिए। To be usable by God, we must treat all believers equally, decide in advance to live faithfully, and also use our gifts collectively in the church. और जैसे कि परमेश्वर की सेवा के लिए आप यदि इस्तेमाल होना चाहते हैं तो जो वरदान परमेश्वर ने दिया है उस वरदान को कलीसिया में जो है सभी लोग मिल करके उसको इस्तेमाल करें और उस सुसमाचार को दिन ब दिन फैलाते जाएं। Now we come to the fourth point. आइए हम लोग चौथा पॉइंट की ओर चलते हैं। Give generously and cheerfully. और जो कुछ आपके पास है आप जो है बड़े उदारता के साथ, बड़े खुशी के साथ जो है दूसरों को दीजिए। See, Acts 11, chapter 11, verse 28 to 30, if you read that, you will come to know that. और आप जो है 11 अध्याय उसका 28वां पद से लेकर के 30वां पद तक आप लोग पढ़ेंगे तो इस बात को आप लोग समझ सकते हैं। So give generously and cheerfully is the fourth thing to be usable by God. और परमेश्वर की सेवा के लिए आप यदि इस्तेमाल होना चाहते हैं तो चौथी बात यही है कि आपके पास जो है वो बड़े खुशी और उदारता के साथ दूसरों को दीजिए। Now, if you look at verse 28, one of the prophets from Jerusalem named Agabus predicts, severe famine would spread over the entire Roman world. और जो है एक भविष्यद्वक्ता के विषय में हम लोग यहाँ पर देखते हैं, वो भविष्यद्वक्ता जो है अगबूस है, वो क्या करते हैं ना अपना दर्शन में इस बात को देखते हुए जो है वो भविष्यवाणी करते हैं कि पूरा रोमी साम्राज्य में बहुत बड़ी एक अकाल आने वाली है। During this time, Saul was teaching about the giving for other people, the believers, those who need help. और ऐसे वक्त में साउल जो है दूसरों को शिक्षा दे रहे थे और दूसरों को किस तरीके से हम मदद कर सकते हैं इसके विषय में दूसरों को शिक्षा दे रहे थे। Now later on, the famine is going to come now. और अभी कुछ समय के बाद जो है बहुत बड़ी अकाल आने वाली है। When the believers in Antioch hear about the famine, they decided to provide help for brothers living in Judea and send their gift to the elders of the church in Jerusalem by Barnabas and Saul. और अब देखिए कि जो है जो अंत्योकिया में जो विश्वासी लोग रहते थे इस विषय को सुनते ही वे लोगों ने क्या किया है, यहूदा में और जो है बाकी जगहों में जो विश्वासी भाई बहन लोग हैं उन लोगों को मदद करने के लिए वे अपना पूंजी को एकत्रित किए हैं। Chapter 11 verse 29 and 30 you read, then you will see that. जो है इस बात की यदि आपको पढ़ना है जानना है तो 11 अध्याय उसका 29 और 30वां पद को आप पढ़ सकते हैं। So each of these believers in Antioch gave according to his ability, or as much as they can afford to give. और अब देखिए हर एक विश्वासी अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने जो पूंजी से जो है वे लोग ला करके उन्होंने परमेश्वर की सेवा के लिए दिए हैं।
we are not supposed to give something to someone when it is affluence and we have everything available. Even in our poverty and difficulty, out of that we give something to other believers. That is the real giving. That was Saul was teaching in the believers, in the scattered believers there. और जो है जो बिखरे हुए विश्वासी वहां पर जो थे उनको साउल व पौलुस जो है इस तरीके से शिक्षा दे रहे थे कि आपके पास जब धन की भंडार होती है, कुबेर होता है, उस वक्त जो है दूसरों को देते हैं, ऐसा नहीं, बल्कि आपके जो गरीबीपन में भी दूसरों को देना है, इस बात को पौलुस जो है वहां पर शिक्षा दे रहे थे. Oh, this implies a sacrificial giving on the part of the Antiochian Christians. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं अंत्योकिया का जो विश्वासी मसीह लोग हैं, ये क्या है ना, जो है एक देने का मनोभाव, जो है अपने पास कुछ ना होते हुए भी दूसरों को उदारता के साथ देने की स्वभाव को हम लोग देख सकते हैं. दुनिया में दो तरीके का आदमी लोग रहते हैं. और in the world we find that two types of people are there. There are only two kinds of people in the world, takers and givers. और two types of दो तरह का लोगों को हम लोग देख सकते हैं, एक तो लेना, दूसरा देना. But God is always using the givers. लेकिन परमेश्वर जो है किसको इस्तेमाल करते हैं? जो दूसरों को देते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं. Some people always want to get something, they don't want to give anything at all. But God cannot use such people. God prefers to have givers, just give the word, give the material help, give your encouragement, give your presence, give your time. God likes givers to be in active fellowship in the church. और जो है परमेश्वर क्या है ना, जो है जो देते हैं, और कलीसिया में जो लोग जो है दूसरों को देते हैं, ऐसे लोगों को पसंद करते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो है पाना ही चाहते लेकिन दूसरों को देना नहीं चाहते हैं. The Bible tells us we should decide in our hearts not to give reluctantly or under compulsion or pressure. और परमेश्वर का वचन हमें यही आज्ञा देती है कि जो है जब हम दूसरों को देते हैं, मजबूरी में आकर के देना या बाध्य होकर के देना या फिर जो है संकोच मन करके दूसरों को देना, इसके लिए परमेश्वर का वचन हमें मना करती है. You look at 2 Corinthians chapter 9 verse 7, we can see that principle there. We should not give because we are forced or pressurized to give something to someone. और जो है दूसरा कुरिन्थियो उसका 2 Corinthians chapter 9 verse 7, right? Yes. ओके, हम लोग जो है दूसरा कोरिन्थियो उसका 9वां अध्याय 7वां पद को इस तरीके से देखते हैं कि जो है कुड़कुड़ा करके या फिर किसी का दबाव में आकर के दूसरों को दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. When we give something to someone, that giving brings us great joy when it comes from deep in our hearts. और जो है दूसरों को हम लोग जब देते हैं, वो देने के पश्चात जो है आपके और मेरे मन में जो है अंदरूनी दिल से बहुत खुशी उत्पन्न होती है. That is the way God wants us to give. और वही जो तरीका हमें अपनाना चाहिए, और परमेश्वर ऐसे देने वालों को परमेश्वर चाहता है. God looks at the heart, not the amount you give. और परमेश्वर जो है लोगों का दिल को वो देखता है, ना कि आप कितना देते हैं उसको नहीं. When we give generously and cheerfully, we are giving from a heart grateful for what God has already done for us and given to us. और जो है क्या है, जो आप देते हैं वो देना क्या है, बड़े उदारता के साथ, बड़े खुशी के साथ आप दूसरों को देना है. परमेश्वर ने सबसे पहले तो बहुत खुशी के साथ आपको और मुझे उद्धार करने के लिए दे चुके हैं. This is the type of giving or giver God loves. और ऐसे ही इस तरीका का जो है देना और देने वाला को परमेश्वर प्रेम करते हैं, चाहते हैं. That's why Barnabas went to Tarsus and brought Saul to teach the word of God, to divide the word of God rightly to the scattered, persecuted believers in Antioch. And they learned these lessons very well because Apostle Paul taught this very much, focusing on the cheerful and giving to God with wholeheartedly. और आप देखिए, इसीलिए जो है बरनबा क्या किए हैं,
तारसीस को जा करके प्रेरित पौलुस को लेकर के आते हैं ताकि वचन को सही तरीके से विभाजित कर पाए, वचन को सही तरीके से शिक्षा दे पाए। और प्रेरित पौलुस ने उस वचन को शिक्षा दिया और वहां पर जो बिखरे हुए विश्वासी अंत्योकिया में थे वे लोग क्या किया है ना दूसरों को देना सीखा है। I'm going to close my words right here. To be usable for God, we must treat all believers equally. और जो है यहाँ पर मेरा जो प्रवचन को मेरा जो संदेश को मैं विराम देना चाहता हूँ, परमेश्वर की सेवा के लिए आप इस्तेमाल होना चाहते हैं तो सभी विश्वासियों को समांतर तरीके से ध्यान दे, ना कि पक्षपात करे। To be usable for God, we must decide in advance to live faithfully before God. और जो है परमेश्वर की सेवा के लिए आप यदि इस्तेमाल होना चाहते हैं तो पूर्व निर्धारण कर लीजिए कि आप जो है परमेश्वर के लिए अपने जीवन भर विश्वस्त जीवन को आप व्यतीत करेंगे। To be usable for God, use our gifts collectively in the church. और परमेश्वर की सेवा के लिए आप इस्तेमाल होना चाहते हैं तो परमेश्वर ने विभिन्न वरदानों से आपको यदि दिया है, उन वरदानों को सभी लोग मिल करके परमेश्वर की सेवा कलीसिया का बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करिए। To be usable for God, give generously and cheerfully. और परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं तो जो कुछ भी आपके पास है बड़े उदारता के साथ और बड़े खुशी के साथ दूसरों को दीजिए। Brothers and sisters, in which of these areas we have failed and need to focus so that we will be more usable for God in the days ahead as in our spiritual journey from tradition to transformation. मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो विषय को आज हम लोगों ने देखा है, इन विषयों में हमारे जीवन में कौन सा ऐसी विषय है जिसमें हमारे जीवन में कमी आया है, और जो है हम लोग यदि उस कमी को सुधार देंगे तो जो है क्या हो जाएंगे ना, एक व्यक्ति जो है परिवर्तित होकर के परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल हो सकता है। May the Lord help us to examine and correct wherever it is needed. May His name be glorified. मेरे प्यारों, परमेश्वर इस वचन से हम सभी को आशीष करे, जहां पर हमारी कमी है वहां पर हम लोग सुधारें और परमेश्वर की सेवा के लिए हम इस्तेमाल हो पाए। God bless you until we meet again in next Saturday morning evening. और जो है परमेश्वर सभी को आशीष करे, जब तक हम लोग जो है अगले शनिवार को नहीं मिलते तब तक प्रभु आपके साथ रहे। Amen. Amen.